A very warm welcome to everybody who is present here today. आप सभी का आज के इवेंट में स्वागत है। यहाँ पे मौजूद सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुरू करने से पहले सबको मैं दिखाना चाहूंगी एक छोटा सा वीडियो जो आप सबको ये बताएगा कि इंडिकैन फ्रेंडशिप क्लब है क्या। No matter where we are, we kept in mind the shared culture between India and Canada and formed the Indican Friendship Club. Chairman of Gold Soup Group, Mr. Surendra Gupta ji, and Director of Raksh, Mr. Anmol Chawla ji, joined hands and created an online platform to make the connection between the two countries more secure. Mr. Surendra Gupta ji is the chairman of Gold Soup Group, a corporate house of Delhi NCR. He is a renowned developer, builder, and financier working in various states of India. He is also involved in various social service programs such as Rotary Club of Delhi Rajdhani, Agarwal Samaj, Vaish Samaj, NGO Suniye, RWA Vasant Kunj, PhD Chamber of Commerce, and many more. Mr. Anmol Chawla ji is the director of Raksh Management Private Limited, which is a 360-degree marketing and event planning firm. He is a young entrepreneur and has been an active leader of Rotary International for 8 years. He is also the trustee of organizations like Tobago and Divya Vardhan Charitable Trust. Indican Friendship Club is connecting people of India and Canada virtually to build friendship, exchange business, and also interact with one another. You can enter the virtual world of Indican Friendship Club through our website www.indicanfc.com. To become a member, you can visit our website and click on Join Us. Click on Create Account, enter all the details of authentication, create your own username and password, click on Sign In to proceed. Enter the login credentials that you created and click on Sign In again. You will enter the main lobby of our Indican world. You can explore our additional attractions on the website. You can promote your company or brand in the exhibition area where you will find our service providers very soon. You can avail their services by contacting them directly. In the clubhouse, you can play our uploaded games and have fun. There is a card exchange section created specially for you to share your business visiting cards to increase your visibility and let others know about your business. The most entertaining section will be the auditorium. You will be able to attend all our gala entertainment evenings in this auditorium. Big celebrities in renowned faces will be live here and you can enjoy listening to them. If you become our member, you will get all the updates about our upcoming entertainment nights the entire week. We have created this club with the purpose of uniting people and making the lives of the immigrants in Canada easier. We will also help the people in India to connect with the people in Canada who are willing to relocate. We also intend to do a cultural exchange that brings the people together, keeping them united. Let us join hands and come together on this platform. Indian culture. आई थिंक इससे बेटर इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता था एक इवेंट को शुरू करने के लिए एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए एंड आई एम वेरी श्योर कि ये जो इतना अनोखा कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को अभी तक पसंद आ रहा है और आगे भी आएगा और आप लोग इससे जरूर जुड़ेंगे। इसके पीछे का जो थॉट है उस पर बहुत ही अच्छी इंटेंशन है पूरी टीम की एंड आई वुड लाइक टू थैंक
Mr. Surendra Gupta ji and Mr. Anmol Chawla ji for coming up with this wonderful thought and bringing us all together today. And with this, I would like to acknowledge the presence of our management team members as well. Mr. Surendra Gupta sir, who is the president of IndyCam Friendship Club, and Mr. Anmol Chawla ji, who is the secretary of this club. Thank you for joining us and hosting this event today. We also have Mr. Kabir Bansal, who is our advisory team board member. So all of them are watching us live on our website in the auditorium itself. And all the viewers and all the audience will be asking their questions today from that platform only. So moving ahead, today we are back with Miss Shweta Singh ji once again. So Shweta ji, मतलब आपको सबने दोबारा इतना याद किया और न सब कि आपको दोबारा बुलाने की इच्छा फिर से हुई और बस इसीलिए बिना लेट किए बस हमने प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया. तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा था. जी, थैंक यू सो मच. मैं बहुत लकी फील करती हूँ ऐसे एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ मैं, जहाँ पर हमारे जो हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो दूर है या पास है, एंड मोस्टली तो जो हम जुड़े हुए हैं उनसे वो काफी दूर ही बैठे हैं हमसे, बट ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए. एंड थैंक यू सो मच मिस्टर सुरेंद्र गुप्ता सर को कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया. एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू अनमोल सर. एंड जैसा कि आपने पूछा पिछला एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा. सबके बारे में अलग अलग कुंडली बेसिकली रीड करना, ये तो मेरे बहुत ही इंटरेस्ट का काम है. एंड एक नया मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है कि मैं मोस्टली उन लोगों के बारे में देख पा रही हूँ जो कि हमसे उन लोगों की आई मीन हॉरोस्कोप में रीड कर पा रही हूँ, जो कि मुश्किल है थोड़ा ऐसे फेस टू फेस मिलना. तो थैंक यू उन लोगों से मिलाने के लिए. एंड एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था मेरा. एंड आज भी मुझे लगता है कुछ अच्छा ही करेंगे हम, एंड एक और अच्छी मेमोरी क्रिएट करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, आप वैसे ही मतलब मैं लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, आप वैसे ही अपना काम बहुत ही उम्दा तरीके से करती हैं. एंड शायद इसीलिए लोगों ने बार बार क्वेश्चंस पूछे एंड सबके इतनी क्वेरीज आई कि लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया. इसलिए इस बार हमने सोचा कि एक बार दोबारा हम आपको बुलाएं और जो लोगों के सवाल पिछली बार अधूरे रह गए थे हम उनको जरूर पूरा करें इस बार. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ दोबारा जुड़े. एक बार पिछली बार की तरह मैं फिर से बता देती हूँ कि हम ऑडियंस के सवाल कैसे लेंगे. हम तो चाहेंगे ऑब्वियसली कि इस बार आप डायरेक्टली पूछ पाते उनसे सवाल, लेकिन क्योंकि सब हमसे हमारे ऑडिटोरियम के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आपके पास वहां पे एक छोटा सा सेक्शन आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स आ रहा होगा, एक क्वेश्चन बॉक्स होगा जिसमें आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं और वो सवाल मेरे पास यहाँ डायरेक्टली आ जाएंगे जिससे मैं मैम से पूछ सकती हूँ. वैसे तो मैं चाहूंगी मैम वैसे ही इतनी श्वेता जी इतनी समझदार और साथ साथ इतनी खूबसूरत है, सबको अगर मौका मिलता मैम से बात करने का तो बहुत ही अच्छा होता, बट अभी ये सब आगे मैं लूंगी, मैं सवाल पूछूंगी सबसे. मिलती है. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल मैम. चलिए पहले थोड़ा सा मैं जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं श्वेता जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ. तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में वो लगभग 9 साल से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9-10 साल से. और बहुत से न्यूज चैनल में लाइव उन्होंने ऑडियंस के क्वेश्चंस को आंसर किया है, प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है. साथ साथ वो जेमोलॉजिस्ट भी है एंड प्रैक्टिस करती है गोल्ड स्कोप मॉल में जो कि गुड़गांव में है. अगर कोई चाहे, उनके क्लाइंट्स वहीं जाकर के उनसे मिलते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं. तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमें मैम से वहां जाकर के भी मिल सकता है. शुरू करते हैं सवालों से. ठीक है, पहला है कि ठीक है, मेरे पास कुछ डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे आई हुई है, मैं उन्हीं से शुरुआत करती हूँ. एंड इन द मीन टाइम हमारे जो दर्शक हैं एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, पहला सवाल है कैसा है मैम, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी. डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1996. 13 दिसंबर 1996. ओके. हाँ जी. प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली. टाइम और टाइम है उनका लगभग सुबह के 4 बजे. ओके.
तो ये जानना चाहती हैं कि मतलब उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और कब शुरू हो पाएगी, ये उनका क्वेश्चन। अच्छा, और कब कब तक when will she get married? She wants to know about her married life. Yeah. जी जी जी। तो देखिए, इनका मैंने चार्ट ओपन कर दिया है अभी। लिब्रा एसेंडेंट है, सन साइन इनका, सन साइन एंड मून साइन दोनों ही इनका सैजिटेरियस है। लेकिन टर्म है जो कि मैं बताना चाहती हूँ, लाइक मून साइन एंड सन साइन सबको अपना बेसिकली पता होना चाहिए। एंड क्योंकि इन्होंने मैरिज का क्वेश्चन पुट अप किया है, तो ये भी मैं अपनी ओर से बताना चाहूंगी कि ये नॉन मांगलिक है, आई मीन मांगलिक नहीं है। जैसा कि जनरली 40% लोग मांगलिक होते हैं, तो ये नॉन मांगलिक है। और इनका काफी अच्छा है, शादी का जो योग है ये इनका विवाह का भी चल रहा है। 26 फरवरी 2022 से इनकी जुपिटर के अंदर दशा स्टार्ट हुई है। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है इनके चार्ट में, तो जहां तक पॉसिबिलिटी है कि ईयर एंड तक इनकी शादी हो जाएगी। और स्पाउस हाउस का लॉर्ड इनका मंगल है, तो बहुत अच्छी शादी रहेगी इनकी। बस थोड़ा अपना टेम्परामेंट के कंट्रोल रखेंगी, बिकॉज इनका जैसे स्त्रियों की कुंडली में अगर मंगल एंड सन बहुत स्ट्रांग हो जाए तो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी देता है। तो लेकिन स्ट्रांग होना चाहिए, बट गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल रखेंगी तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई थिंक श्वेता जी, इस पर तो मैं थोड़ा सा आपका भी व्यू पॉइंट जानना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आजकल जैसा सब लड़कियां खुद में इंडिपेंडेंट है और बिल्कुल होना भी चाहिए, तो आपके हिसाब से इसका क्या असर आता है एक आज की जनरेशन की मैरिड लाइफ पे, कि उनकी सस्टेनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बिकॉज पहले के कंपैरिजन में अभी चीजें बहुत बदल चुकी हैं, तो क्या इस चीज का आपके हिसाब से कोई इफेक्ट आता है मैरिड लाइफ पे? देखिए, ऑब्वियसली जब कोई इंडिपेंडेंट होता है तो देखिए गुस्सा तो हर किसी को आता है, और आपके पास पावर है। पावर मीन्स एक इंडिपेंडेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है किसी के लिए। और अगर आप क्रोधी स्वभाव के हो, आपको गुस्सा आता है, तो वो जो इंडिपेंडेंस है, आपकी जो पावर है, वो कभी कभी नेगेटिव चली जाती है। मीन्स इंस्टेंट एक एक्शन लेने के लिए रेडी हो, कुछ सोच नहीं होता है। तो आजकल जब से जैसे लेडीज को, जनरली स्त्रियों को वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सौम्य एंड सुशील, शांत होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। बट इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं आपकी सहनशीलता को कम कर देता है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पे जाता है, जो कि एक तरीके से अच्छा भी है कि लाइक आपको कोई हरास नहीं कर सकता। बट हाँ, इस वजह से एक इंडिपेंडेंस जो है आज की डेट में स्त्रियों की, वो एक शादी को टूटने में भी बहुत ज्यादा उसका एक रोल है। बिल्कुल 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 एग्री करूंगी मैं आपसे इस बात पे। पर हाँ, वही बात है, आजकल नए नए तरह के एग्जाम्पल्स देखने मिलते हैं, नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, और देखते हैं कि लोग उनसे इतने अच्छी तरह से ढल रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, तो वो देखते हुए भी अच्छा लगता है कई बार। बिल्कुल। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, ये भी डेट ऑफ बर्थ काफी हद तक आसपास ही है। इट इज 4 दिसंबर 1996। गर्ल या बॉय? गर्ल। ओके। हाँ जी, इनका प्लेस ऑफ बर्थ यूपी है। 4 दिसंबर, सॉरी 4 दिसंबर 1996। ओके। हाँ जी, प्लेस ऑफ बर्थ इनका यूपी है। ओके। हाँ जी, और समय नहीं पता है, समय नहीं बताया है, लेकिन अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं, क्योंकि अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है उन्होंने, तो वहां पे उनका क्या स्कोप रहेगा, या फिर आगे जाके करियर लाइफ कैसे ब्लूम करेगी, कैसा रहेगा? जी, इनका जन्म स्थान पता चल सकता है? जन्म स्थान यूपी ही बताया है उन्होंने। अच्छा, ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ। बिकॉज इंडिया में एक चीज अच्छी है कि जो लैंड लॉन्ग है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिकली जो बहुत, क्योंकि इंडिया प्लेन पर है, तो बेसिकली हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए होता है, इसलिए पर्टिकुलरली मुरादाबाद उन्होंने जस्ट अभी मेंशन किया है, मुरादाबाद एरिया। जी जी जी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मैं इनकी चंद्र कुंडली बना रही हूँ, बिकॉज टाइम ऑफ बर्थ नहीं है इनका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। देखिए, वर्गो इनका मून साइन है,
और सन साइन इनका सेजिटेरियस ही है। और इनके अकॉर्डिंग देखिए अभी जो इनका टाइम चल रहा है, जॉब तो इनकी ठीक रहेगी, बिकॉज थोड़ा सा अभी जो मूवमेंट हुआ है सैटर्न का कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, तो चंद्र से सप्तम राशि का इनका सॉरी छठे घर का शनि है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको एफर्ट ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। इरिटेशन हो सकती है इनको अपने जॉब में एंड थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट अगर ये स्ट्रांगली अपने आप को वहां पर बिल्कुल टिक के रहेंगी तो ये जो टाइम है निकल जाएगा। मार्च 24 तक इनको अपना बेस्ट लाइक परफॉर्म करना है, एफर्ट देना है। थोड़ा सा ये जो टाइम है खराब तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हार्ड वर्क करने वाला टाइम है, तो इट्स गुड। ओके ओके, क्वाइट गुड। आई एम श्योर अब काफी करियर एक ऐसी चीज है जैसे पर्सनल लाइफ में शादी हो गया या फिर इस एज ग्रुप में करियर हो गया, यही दो इतने मेन प्रोमिनेंट सबके लिए रहते हैं कि इनके बारे में पता लग जाए कि हमें आगे क्या करना है तो बस लाइफ सेट हो जाएगी, है ना? सही बोला, 96 पॉइंट है जैसा कि, तो ये जिस एज से अभी गो थ्रू कर रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ पे सारी चीजें चेंज होती है, नो डाउट। 36 से लेकर के 35 की एज होती है, बड़े बड़े लाइफ के डिसीजंस आपको लेने होते हैं, तो ऑब्वियसली ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, साथ ही साथ अभी एक सवाल किसी ने पूछा है चैट बॉक्स पे, मैं उनसे चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज अपनी टाइम ऑफ बर्थ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि श्वेता जी एकदम एक्यूरेट और एकदम बढ़िया बेस्ट तरीके से अपना रीडिंग दे पाए। तो इफ पॉसिबल आप एक बार प्लेस ऑफ बर्थ शेयर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए सो दैट आपकी रीडिंग एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं। इस बार श्वेता जी वैसे मैंने डिसाइड किया था कि इस बार हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लेंगे सो दैट जो इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट है वो हमारे साथ आगे तक बना रहे और लोग आपको डायरेक्टली भी रीच आउट करें। तो हम इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस लेंगे। देयर विल बी जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे उनमें से जो सवाल मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा मैं जरूर वो पूछूंगी। तो ये हमारी ऑडियंस के लिए भी है, प्लीज ट्राई कि आप जो लाइफ करियर ठीक है ये सब पूछते हैं, कुछ कुछ ऐसा सवाल जरूर पूछिए जो एकदम फन हो एंड कुछ डिफरेंट हो, आप जो आप अपने बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24/8 जी 1977। 24/8 अगस्त 1977। हाँ जी, 1977, राइट। एंड इनका जो है, एक सेकेंड, मैं चाहूंगी एक बार अपनी प्लेस ऑफ बर्थ दोबारा शेयर कर दीजिए बिकॉज इनका प्लेस ऑफ बर्थ अभी हमारे पास नहीं है। आई थिंक हमें रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा, राइट? एक सेकेंड दीजिए। ठीक है, तो अभी जब तक ये हमारे साथ हमारा अपना प्लेस ऑफ बर्थ शेयर कर रही हैं, हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 12 दिसंबर 1997। ओके, 12 दिसंबर 1997। हाँ जी, इनका भी टाइम, हम ये टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन प्लेस है दिल्ली। ओके, हाँ जी, और इनका सवाल है कि अभी आगे और फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहती है, पीएचडी करना चाहती हैं, जितना हायर एजुकेशन इनके लिए पॉसिबल हो, सो उसमें इनका क्या स्कोप रहेगा, क्या उनके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा और क्या स्कोप है? जी देखिए, इनका मून साइन मेष यानी एरीज है और सन साइन इनका भी सेजिटेरियस है। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं तीसरा हॉरोस्कोप चेक कर रही हूँ, तीसरा भी जो सन साइन है वो सेजिटेरियस ही है। बिल्कुल। जी, तो इनका अभी देखिए बाहर जाना इनके लिए कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि जो इनकी प्लेसमेंट है राहु एंड केतु के बीच में, सैटर्न एंड मून आ रहे हैं, तो बाहर जाने के लिए बहुत आराम से हो जाएगा बिकॉज इनका जुपिटर काफी वीक है। जुपिटर वीक हो तो बाहर जाने में हेल्प करता है, स्ट्रांग होता है, अपनी धरती को पकड़ के रखता है। तो बट इनका जुपिटर वीक है तो इनको पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा बिकॉज जुपिटर यानी नाम ही गुरु है और पीएचडी कहीं ना कहीं रिलेट करता है टीचिंग एंड प्रोफेसर जैसे जो लोग बनना चाहते हैं या टीचिंग
डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेट करता है, बट उसका मेन प्लैनेट जुपिटर ही है, क्योंकि इनका काफी वीक है, तो काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा इनको, और फिर ही एक पीएचडी में इनका हो पाएगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि इनको गुरुदेव बृहस्पति का कुछ रेमेडी करना चाहिए। तो उसके लिए लाइक पूजा भी कर सकती है या डोनेट कर सकती है जरूरतमंद लोगों को, वो इनको काफी हेल्प करेगा। बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत 90% पॉसिबिलिटी है कि ये बाहर ही रहेंगी, एंड बट पीएचडी के थ्रू या किसी और रास्ते के थ्रू वो लाइक डीप स्टडी का एक सब्जेक्ट है जी। वाह, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। आई एम श्योर, बल्कि बाहर जाकर के पढ़ना एक कहीं ना कहीं सबका थोड़ा बहुत ड्रीम रहता है। इसी थॉट के साथ हमने यही सोचा था कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको कनाडा जाके पढ़ना है या कहीं भी बाहर किसी कंट्री में जाके पढ़ना है, और वहां जाने के बाद इतनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें लगता है कि ये भी, इस चीज की भी जरूरत है, कोई होता तो इस चीज के लिए भी गाइड कर देता है एंड इसी रीजन से हमारे ये प्लेटफॉर्म बना है कि वहाँ के लोग जो कुछ भी सर्विसेज चाहें, उन्हें लगता है कि भाई ये भी यहाँ पे यूज हो सकता है या फिर इस चीज की जरूरत है, तो वो हम जरूरत पूरी कर सकें। जी, चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट और सवाल की ओर। ठीक है, उस नेक्स्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 जून 1998। ओके, राइट, एंड इनका प्लेस है दक पत्थर, देहरादून। ओके, हाँ जी, एंड इनका टाइम है सुबह के 8:30 बजे। ओके, राइट, एंड ये जानना चाहते हैं अपनी सवाल देखिए, बिकॉज अब ये फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो फ्यूचर में और क्या क्या चीजें, आई एम श्योर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जरूर होगा, बट इफ वी स्टिल कीप इट जनरल, हम उनके करियर लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनका करियर कैसा रहेगा। टाइम ऑफ बर्थ भी मेरे को आपने प्रोवाइड किया है, एंड डेट ऑफ बर्थ भी, तो इनका प्रॉपर मैं चार्ट मैंने बनाया है। ये बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, एंड मून साइन लिब्रा है, सन साइन इनका जेमिनाई है, और बेसिकली बहुत ही एक्टिव एंड क्रिएटिव है ये। तो इनका जो करियर होगा, जो लोग बहुत वैसे क्रिएटिव होते हैं, स्किलफुल पर्सनालिटी होती है, ऐसे लोग जॉब के साथ बिजनेस में जरूर इंटरेस्ट रखते हैं। सूनर और लेटर ये बिजनेस तो जरूर करेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इनके सारे ही प्लैनेट्स बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है, सब बहुत ऑस्पिशियस हाउस में है, तो ये इनके पास पावर रहेगी, जो चाहते हैं ये उस स्थिति में हमेशा पहुंचेंगे। उसके बाद ये क्या, लाइक अगर इनको चाहिए कि ये बहुत अच्छा बिजनेस करे, तो ये ऐसे सर्कमस्टेंस में आ जाएंगे, ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आने के बाद इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका मूड चेंज तो नहीं हो गया। मीन्स इनका तो जो करियर का अगर मैं देखूं तो अभी इनका जॉब का ही है शुरुआत के 6 to 7 ईयर्स, बिकॉज ये बुध की दशा से गो थ्रू कर रहे हैं, बट उसके बाद ये बिजनेस में डेफिनेटली आएंगे। वाह, इनका फ्यूचर तो अच्छा रहेगा जी। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। आई थिंक कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में ये होता है कि यार अपना काम होना तो बेस्ट है, तो अब एक एटलीस्ट वो आपका डिसीजन मेकिंग एंड इंडिपेंडेंस जो रहता है खुद के बिजनेस में, वो हर कोई चाहता है, पर उस चीज को परस्यू करना भी सबके लिए नहीं होता। बट आई एम श्योर अगर ये कर सकते हैं, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कि आप बता रहे हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट फॉर हिम। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 अगस्त 1983। ओके, हाँ जी, एंड इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है 5 PM। ओके, प्लेस है देहरादून जी। तो ये अपनी मैरिड लाइफ जो चल रही है उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहती है जी। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और आगे फ्यूचर बच्चों के साथ फैमिली लाइफ इन शॉर्ट कैसी रहेगी। जी, देखिए इनका कंप्लीट अपने डिटेल मेरे को दिया है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। तो लग्न में इनके केतु बैठा है, और बेसिकली जैसे केतु अगर किसी के एसेंडेंट यानी लग्न में बैठ जाए तो थोड़ी सी लाइफ में अनसर्टेनिटी देता है, बिकॉज केतु सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है, उनके चार्ट पे बहुत बड़ा कंट्रोल है केतु का। तो थोड़ी
सीरियस इनकी लाइफ रहेगी और मांगलिक भी है ये, तो मैरिज का थोड़ा सा इनके लिए क्वेश्चन वाला पॉइंट है। बट बहुत ज्यादा भी मांगलिक नहीं है, ये आंशिक मांगलिक है। अगर तो इनकी वाइफ मांगलिक है तो इनकी लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, बहुत औसम नहीं बोल सकती मैं। ये खुद भी फीमेल है। अच्छा, फीमेल है। हाँ ठीक है, फीमेल है, फिर भी मतलब सेम चीज उन्हीं लिए है कि अगर ये मंगलिक है, अगर इनके स्पाउस मंगलिक होंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अदरवाइज गाड़ी चलती रहेगी बट सेटिस्फैक्शन वाली चीज नहीं रहेगी। लक्ष्मी योग है इनकी कुंडली में, धन वैभव का तो बहुत अच्छा योग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटल पीस तो होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा चैलेंज दिखता है। ओके ओके, ठीक है। आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में उनको आगे जरूर हेल्प करेगा कि अगर जब आपको पहले ही पता हो कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न उस हिसाब से चेंज करना शुरू करते हो कि वो चीज ना हो। एंड आई एम श्योर यही कहीं ना कहीं हमारे लिए लर्निंग रहती है कि ठीक है, अब जब हमें वक्त से पहले पता लग गया तो हम उस चीज पे वर्कआउट कर सके। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। चलिए अब एक सवाल और हम लेते हैं, विच इज मेरे पास अभी भी इनकी टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं आया है, सो आई डोंट थिंक जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रह पाएगी, पर हम फिर भी एक बार कोशिश करते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 24/8/1977 जी जी। एंड इनका जो क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू हर बिजनेस, बिकॉज वो भी अपने बिजनेस में है एंड नो ऑलरेडी काफी हद तक ग्रो करा है, बट आगे शी वांट्स टू नो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ हर बिजनेस एंड हाउ विल इट ब्लू। इनका बर्थप्लेस प्लीज। Birthplace, as far as I think, just give me a minute. It is New Delhi. ओके, देखिए इनका जैसा कि मून साइन सजिटेरियस ही है, सन साइन इनका वर्गो है। वर्गो जहां पर भी, जैसे बुध जो एक प्लैनेट है उनको हम बिजनेस प्लैनेट बोलते हैं, जिनका बुध अच्छा है चार्ट में, ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो इनका जो सन साइन का लॉर्ड है वो मर्क्यूरी यानी बुध है, तो बिजनेस में जो डेफिनेटली मतलब अच्छा इनका चल रहा होगा, बट इनके सपने बहुत बड़े होंगे। और दोस्त का ये अच्छी बात होती है कि ये अपने लाइफ से में भी सेटिस्फाइड हो, बट अपने काम को लेकर के कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि लाइक वो कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहते हैं। They always want to move higher. बिल्कुल, तो इनकी डिजायर्स होती हैं, पैशनेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। तो मर्क्यूरी बहुत अच्छा प्लैनेट होता है, आपको इनके चार्ट में जैसे बुधादित्य योग भी है एंड ज़ोडिएक साइन भी इनका वर्गो है, तो ये कुछ बड़ा कर सकती हैं, जस्ट फोकस रहना चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शन, कुछ बड़ा कर जाएंगी। वाओ वाओ वाओ, that is great. I think ये भी बहुत अच्छा motivation and encouragement होगा उनके लिए to keep going with what she is already doing, and we are sure that she will achieve heights if she keeps doing hard work. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आज इनके ऊपर कल yesterday आई मीन 7:30 से ये फ्री हो चुकी है, 7:30 29 को जो ट्रांजिशन हुआ है, सारे जितने भी लोग सेजिटेरियस हैं, मून साइन नॉट ज़ोडिएक साइन, अब उनके ऊपर से 7:30 हटी है। ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो जितने भी हमारे दर्शक इस मून साइन के हैं, दे वुड नो कि अब वो फ्री हो गए हैं 7:30 से। दैट इज ग्रेट। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी डेफिनेटली। चलिए अब बस हम लेंगे एक और आखिरी सवाल, क्योंकि ये जो है जो जेंटलमैन है, ये बहुत टाइम से अपने शादी का वेट कर रहे हैं कि कब उनकी शादी होगी। सो उनका डेट ऑफ बर्थ पहले मैं आपको बता देती हूँ, इट इज 30 नवंबर 1992। ओके, एंड इनका प्लेस ऑफ बर्थ है लुधियाना, टाइम नहीं उनको मालूम है, प्लेस लुधियाना है। एंड जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड कैसी रहेगी उनकी मैरिड लाइफ, दैट इज जी, ओके।
देखिए ये चंद्र मांगलिक तो है, चंद्र मांगलिक है, और वैसे तो इनकी कुंडली काफी पावरफुल दिखती है, काफी अच्छे योग बने हुए हैं। टाइम पता होता है तो उससे ये पता चल जाता है मुझे कि ये मांगलिक पूरी तरीके से है कि नहीं। तो बेसिकली 30, जब ये 30 कंप्लीट करेंगे, उसमें क्योंकि सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनके चार्ट में, 30 कंप्लीट करने के बाद इनका योग लगेगा, हर तरीके से इनके लिए काफी अच्छा होगा। 30 की एज, आई मीन जब ये कमिंग 30 नवंबर को ये 30 कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद इनके विवाह का भी योग लगेगा, एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा टाइम इनका स्टार्ट होगा, बिकॉज शनि इनके चार्ट में बहुत लीडिंग प्लैनेट है, और शनि का असर होता है वो 30 साल के बाद स्टार्ट होता है, 33 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा हो जाता है। तो इनकी मैरिज लाइफ वैसे तो अच्छी रहेगी, थोड़े फनी होंगे ये अपनी लाइफ में, और एडवेंचरस भी होंगे, तो बहुत अच्छा इनका चार्ट, लव मैरिज भी कर सकते हैं ये। बिल्कुल, वाह वाह। आई थिंक कहीं ना कहीं श्वेता जी, आई एम श्योर आप इस चीज पे एग्री करोगे। आई थिंक यहाँ पे एक इंडियन सोसाइटी में 30 एज तक पहुंचना, वो भी बिना शादी किए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कई बार बहुत क्वेश्चन हो जाता है इस चीज पे कि कब होगी शादी, कब होगी। बट सिंस आप बता रहे हो कि 30 के बाद बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा हुआ कि वो यहाँ इस टाइम तक रुक गए, राइट? तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और लानी बहुत जरूरी है कि इट इज फाइन, हर चीज हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर एज पे लिखी होती है, एंड जब तभी हो तो उसका इफेक्ट सबसे बेस्ट तरीके से आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक मैम, एक बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे और पूछ रही हूँ, क्योंकि इनका सवाल पिछली बार भी रह गया था, तो मैं चाहूंगी चलिए इस बार, क्योंकि उन्होंने दोबारा बोला कि लास्ट टाइम रह गया था, तो इस बार हम जरूर कवर करें उसको। तो लास्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1999। ओके। इनका प्लेस ऑफ बर्थ है मुजफ्फरनगर, यूपी। और समय है 11:55 रात को। ओके। हाँ जी, या शाम का? शाम का। ओके। एंड इन्होंने अपने करियर के बारे में जानना है कि अपना करियर उनका कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, अपना काम भी शुरू करना चाहते हैं, तो उसका क्या कैसा इफेक्ट रहेगा। जी देखिए, इनका एक तो अच्छी बात ये है कि ये लाइक इनका लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न है, और शनि जिनका लॉर्ड प्लैनेट होता है ना, उनको बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, इंटेलिजेंट बहुत है ये, क्रिएटिव भी बहुत है ये, और अच्छी बात ये है कि ये किसी बाउंड्री में बंद के नहीं रह सकते। हम एक छोटा सा चेंज अगर ये हमारी रीडिंग में लाता है, उन्होंने जस्ट अभी करेक्ट किया है, 11:55 PM नहीं है, AM है। इफ दैट ब्रिंग्स अ चेंज टू द चार्ट, एक बार आप वो चेंज कर दीजिए ताकि वी कैन हैव द बेस्ट रीडिंग। जी ओके। सो 12 जून 1999, 11:55 AM, मुजफ्फरपुर, यूपी। तो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, यस। लगन है, एंड सन साइन इनका जेमिनाई, मून साइन टॉरस। ठीक है, टॉरस मून साइन के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और पर्सनालिटी भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। जुपिटर 9th हाउस में है, लकी भी बहुत है ये। सो बिजनेस के लिए इनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये बिजनेस ही करेंगे। इनकी कुंडली में जॉब का बहुत ज्यादा खास योग नहीं है, जॉब में अगर ये बाई चांस चले भी गए तो ये टिकेंगे नहीं वहां पर, बिकॉज पावर जब होती है कुंडली में, तो ऐसे लोग बंध के नहीं रह सकते, इनको एक अनलिमिटेड ग्रोथ का एक पाथ चाहिए होता है। तो बिजनेस वाला बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे, इनका अच्छा टाइम बहुत जो है वो स्टार्ट होगा सितंबर 2023 ऑनवर्ड। ओके जी। वाह वाह, आई एम श्योर। चलिए, अब थोड़ा और क्लैरिटी उनके पास आ गई है कि कितने समय तक उनको और काम करना है और हार्डवर्क करना है, so दैट अपना काम वो बेस्ट तरीके से स्टार्ट कर सके, एंड वो उनको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स दे, उनका पेशेंस उनको बहुत अच्छा रिजल्ट दे, राइट? सो इसके साथ दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर ये जितने बाकी के क्वेश्चंस हैं
वो आप लोगों को श्वेता मैम के पास जाकर के पूछने होंगे। बाकी एक सवाल मैम, एक जो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ना आपसे डायरेक्टली एक बार पूछना चाहूंगी, वो ये है, जैसे कई लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि उनके मून साइन के अकॉर्डिंग उनको कोई पर्टिकुलर स्टोन पहनना चाहिए या कुछ ब्रेसलेट पहनना चाहिए या कुछ ऐसा होता है। तो सिंस आप जेमोलॉजिस्ट भी हैं, तो अगर आपका जो लाइक ऑफिस है वो वहाँ गोल्ड सूक में तो है ही बिल्कुल, जो हमने अपने ऑडियंस के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो अगर वो आपसे गाइडेंस लेके कोई जेम आपसे खरीदना चाहें या सजेशन भी लेना चाहें, तो क्या उसके लिए कुछ ऑनलाइन आपका वेबसाइट या कुछ पोर्टल है, या फिर लोगों को वहाँ गोल्ड सूक आकर के आपसे वो परचेज करना होगा? जी जी, देखिए अभी तो एक वेबसाइट है मेरी astrosalab.com करके, तो वो लाइक अंडर प्रोसेस है, तो वहाँ ये है कि कनेक्ट तो कर सकते हैं वो डायरेक्टली मुझे या हमारी टीम को, एंड बट परचेज करने के लिए वो पोर्टल के थ्रू ही डायरेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट करके हम वो ऑर्डर प्लेस करा के डिलीवर करवा सकते हैं। ओके ओके ओके, आई थिंक यही बेस्ट ऑप्शन है। आई एम श्योर जो यहाँ पे शर्मा शर्मी के चक्कर में लोग डायरेक्टली आके सवाल नहीं पूछ सकते, वो मैम के पास जा करके डायरेक्टली पूछ पाए, बिकॉज दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। एंड साथ ही साथ जो भी जेम आपके मून साइन के अकॉर्डिंग सजेस्टेड होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, मैम आपके लिए वही सजेस्ट करेंगी, राइट? So with this, I would like to thank everyone जो आए, अगेन उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, सवाल पूछे, एंड श्वेता जी ने बहुत, आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमारे सारे ऑडियंस के सवालों के जवाब इतने डिटेल में और इतने अच्छे से दिए। एंड मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट www.indicanfc.com पे श्वेता जी के बारे में डिटेल्स अवेलेबल हैं और जल्दी हो जाएंगी। वहां पे आकर के आप अगर उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, right? And if anyone of you wants to join the club, you can, there's no membership fee, you can just visit our website and you can come and attend all our events, आपको सारी अपडेट्स मिलती जाएंगी। एंड आने वाले समय में हम बहुत सारे पूज्य स्थल के टूर्स करेंगे, एंड घर बैठे बैठे आप दर्शन कर पाओगे, बहुत सारे फन इवेंट्स होंगे, म्यूजिकल नाइट्स होंगी, तो बहुत कुछ है लाइन में। बट उसके लिए एक बार आपको हमारे वेबसाइट पे जाके लॉग इन जरूर करना पड़ेगा, ताकि सबकी डिटेल्स आपके पास आती रहे। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बार फिर अपना कीमती समय दिया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कितना बिजी रहते हो, आपके पास कितने मुश्किल से आप वक्त निकाल पाते हो, बट वी आर रियली रियली ग्रेटफुल कि आपने हर बार अब हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पर आपके साथ समय बिता के, आप इतना प्यारा बोलती भी हैं, और हमारे जो हमारे दर्शक है उनसे इंटरेक्ट करके मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू सुरेंद्र सर, एंड थैंक्स टू अनमोल सर अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल मिलेंगे हम लोग आपसे। सो अभी के लिए वंस अगेन आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। बिल्कुल, थैंक यू।